یہ بتائیں کہ صرف نعت خواں کا سلام کا جواب دیتے ہیں کیا ہے نا؟ میں نے آپ سے سلام کیا مگر جو انداز سلام کے جواب کا ہونا چاہیے وہ جواب نہیں ملا، ہے نا؟ کچھ لوگوں نے سنا اور کچھ انسنا کر دیے اور کچھ نے جواب دیے، جبکہ سلام کرنا سنت اور سلام کو سن کر سلام کا جواب دینا واجب، اور جو واجب کو ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا، ہے نا؟ تو میں پرسوانوں سے پھر سے سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ حضرات جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں، اب مفتی صاحب یہاں کوئی مسئلہ بیان کیے گا کہ جب 2 مرتبہ سلام کریں گے تب آپ جواب دیں گے؟ بہرحال نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جشن آمد رسول کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں بہت زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا، میں بولتا تو بہت زیادہ ہوں مگر وقت آج کم ہے، اور ربیع النور کے اس پروگرام میں نے دیکھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کہیں 3 بجے نمبر آتا ہے، کہیں 3:45 بجے نمبر آتا ہے، تو آج تو خیر 1:15 بجے نمبر آ گیا ہے نا۔ یہ آپ کے عاشقان رضا تنظیم جو ہے، ان لوگوں نے آج کے اس جلسے کو سجایا، رچایا، بسایا، اللہ رب العزت ان نوجوانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اس پرسا گاؤں میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ممبر نور پر ہندوستان کی ایک عظیم عبقری شخصیت جو آپ ہی کی گود میں پل کر بڑی ہو کر آج ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصے میں جا کر دین اسلام کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات آپ لوگوں کے لیے، اس گاؤں کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ گورکھپور شہر کی جو سب سے بڑی درگاہ جس کو مبارک خاں شہید کہا جاتا ہے، آپ کے گاؤں کے، آپ کی بستی میں رہنے والا وہ مرد مجاہد جس کو آپ نے پرورش دیا، مجاہد سنیت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ماہر درسیات حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی منور رضا صاحب قبلہ مصباحی دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات بابرکات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور مفتی صاحب قبلہ کی علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، ان کو حاسدینوں کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر عالم نوجوان حضرت حافظ و قاری محمد ذیشان صاحب قبلہ رضوی، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ عالم با عمل حضرت علامہ حافظ و قاری فدا حسین صاحب قبلہ رضوی، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ نقیب اہل سنت، نباز قوم ملت حضرت حافظ و قاری محمد عظیم صاحب قبلہ نوری، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ بلبل طیبہ قاری محمد اشرف قادری، شہنشاہ ترنم قاری شرافت صاحب، بلبل طیبہ نور احمد نور صاحب، آبرو ترنم،
जनाब नोमान बस्तवी साहब और आपके इस जलसे को कवर कर रहे हैं मेरे बड़े करीबी दोस्त मुहिब गिरामी वकार हज़रत हाफिज़ कारी महफूजुर रहमान साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। और आपकी बस्ती में एक नौजवान भी है जो रिश्ते में मेरा चचा लगता है, और वो भी बार बार नारा लगाया ना, अल्लाह उस नौजवान को मोहम्मद सलमान साहब को सलामत रखे। मैं बहुत देर वक्त नहीं लूँगा। हज़रात मुहतरम आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़रबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, इसलिए कि आज हम और आप किसी और की बारगाह में नहीं बल्कि पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। उस पैगम्बर की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं जिस पैगम्बर के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया है। हम और आप इस दुनिया में आए ना तो उसी पैगम्बर का सदका है। आज परसा की ज़मीन पर नबी का मीलाद कर रहे हो, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, ज़मीन मिली नबी का सदका, आसमान को रब्बे कायनात ने पैदा किया नबी का सदका, नमाज मिली नबी का सदका, रोज़ा मिला तो नबी का सदका, हज की सआदत मिली तो नबी का सदका, कौली व फ़ेली इबादत मिली तो नबी का सदका। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब तबारक व तआला अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है, तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवाज़ा पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, वहुज़्मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है इस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने जिस नेमत से नवाजा है, क्या मेरी इस नेमत के साथ रब नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकीदत जरूरी है। अब मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम को देखो और अपने आप पर जितना फख्र करो उतना कम है, अपने आप पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन और ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन और मका को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चांद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बी, क्या ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कारी साहब माशाअल्लाह, है ना। तो हजरत मोहतरम, इस रिवायत से पता चला कि हम और आप यहाँ आए हैं ना तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता। रब्बे कायनात ने अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया है, तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। और ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, हम अपने पैगम्बर का जिक्र क्यों ना करें, हम अपने पैगम्बर से मोहब्बत ना करें। मैं दावे के साथ कहता
کہتا ہوں پرسا کی زمین پر اپنی زندگی بسر کرنے والوں، آج حضور مفتی منور رضا مصباحی صاحب قبلہ نے آج آپ کی تیار میں جو منہ مبارک کی زیارت کا یہ پروگرام رکھا ہے نا، اگر سرزمین امرڈوبہ میں ہوتا تو آج جانتے ہو ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی، مگر اے پرسا والوں میں تم پر افسوس کر رہا ہو کہ تم لوگ اس طریقے سے بھاگ رہے ہو، اس طریقے سے جا رہے ہو، ایسا پتا چل رہا ہے کہ تمہیں زبردستی جہاں بٹھایا جا رہا ہے۔ نہیں مسلمان، نبی آخر الزماں کے منہ مبارک کی زیارت کی بات ہے، اس منہ مبارک کی زیارت کی بات ہے جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ اپنی گردن کو کٹانا بھی فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو اے مسلمان، اگر تو بھی نبی پر ایمان رکھتا ہے تو پیغمبر اسلام کی محبت کو سینے میں بسا، اس لیے کہ نبی کی محبت جان ایمان ہے۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، ہم اور آپ پیغمبر اسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ حضرات بیٹھے رہیں، انشاءاللہ رب العزت منہ مبارک کے غسل کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہو، ہمارے قصبے میں یہ چیز کبھی ہوئی ہوگی ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے یہاں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، حقیقت میں ہمارے آقا پیغمبر اسلام نے ہم گنہگاروں سے کتنا پیار کیا ہے، ہم گنہگاروں سے کتنی محبت کی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی بارگاہ میں چلو، حضرت جابر نے نبی کی بارگاہ میں پوچھا تھا یا رسول اللہ، رب کائنات نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکہ سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، نباتات و جمادات سے پہلے، یا رسول اللہ رب کائنات نے کس شے کو پیدا کیا؟ اب اپنے پیغمبر کی عظمت پر قربان جاؤ مسلمانوں، نبی اپنا میلاد خود پڑھ رہے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، رب تبارک و تعالی نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے تیرے محبوب تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا۔ حقیقت میں مسلمانوں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا نا، تو وہ نور اللہ کا قرب اور حاصل کرنا چاہتا تھا، رب تبارک و تعالی کو اور راضی کرنا چاہتا تھا۔ آج مسلمانوں پرسا کی زمین کی مسجد کا جائزہ لے لو، آج ہماری مسجدیں ویران رہتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے گھر میں برکت دے دے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول دے دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو جو مسجدوں کو ویران کیے ہو نا، ان مسجدوں کو پہلے بھرنے کی کوشش کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ آج بھارت کی زمین پر کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، آج ہماری مسجدیں ویران رہتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ آج ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو اینٹ سے اینٹ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پرسا کی زمین پر رہنے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، جس طریقے سے تم جمعہ کی نماز کی ادائیگی میں پورے جمع ہو جاتے ہو نا، اگر اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز کی پابندی میں تم جمع ہو جاؤ تو کسی باطل طاقت کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجدوں کی اینٹ کو بھی ہٹا سکے، مگر ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، پہلے مسجدوں میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرو گے تو رب کائنات تم پر رحمتوں کی برسات عطا کرے گا، تمہاری دنیا بھی سبرے گی، تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو ہمارے پیغمبر ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان سچ میں نبی کا غلام ہوگا تو آج اپنے نذران عقیدت کو پیش کر کے جائے گا۔ اے مسلمانوں، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا، اس نور نے سب سے پہلے جانتے ہو کس کام کو انجام دیا، اس نور نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا، 70,000 سال تک قیام کیا، 70,000 سال تک رکوع کیا، 70,000 سال تک سجدہ
पैदा किया, 70,000 साल तक जलसा में रहे। इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर ने 2 रकात नमाज नफल को पढ़ा है, 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। हकीकत में मुसलमानों रब तबारक व तआला अपने महबूब से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपने महबूब से बहुत ज्यादा राजी होता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, महबूब अब मांग, तू क्या मांगता है? आज मैं तुझे कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ अता करना चाहता हूँ। अब परसा वालों अपने दिल की तख्ती को खोल कर मुझे बताओ, अगर कोई अल्लाह का वली आ जाए आपके इस परसा की जमीन पर, आपसे कहे कि मैं रब तबारक व तआला की तरफ से आया हूँ, जो मांगोगे आज तुझे मैं अल्लाह की तरफ से दिलवाऊंगा, तो दावे के साथ कहता हूँ परसा की जमीन पर जिंदगी बसर करने वाला मुसलमान मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर यही दुआ करेगा कि रब्बे कायनात मुझे गाड़ियां दे दे, रब तबारक व तआला मुझे बिल्डिंगें दे दे, रब्बे कायनात मुझे बंगला चाहिए, रब्बे कायनात मुझे जमीन और जायदाद चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अगर नेक और परहेजगार होगा तो कहेगा मौला मुझे जन्नत दे दे, मेरे खानदान को जन्नत दे दे। ए मुसलमानों, ये तो एक इंसान की छोटी सी सोच है, मगर कुर्बान जाओ सज्जदा आमिना के बेटे पर, कुर्बान जाओ अन दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पर। जब आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब मांग आज तू क्या मांगता है? जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। अब अपने दिल की तख्ती को खोल लो, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम से गलतियां सरजद होंगी, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। अब बताओ मुसलमानों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा उस वक्त हमारे लिए दुआ कर रहे हैं जब रब्बे कायनात ने ज़मीन और आसमान को नहीं पैदा किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कुछ पहलू आपको बताता चलो। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो। नबी के नूर को पैदा किया, हम गुनहगारों को याद किए। अब हज़रत सैयदा आमिना की बारगाह में आओ। हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत होने वाली थी तो मैंने अपनी निगाहों से 3 चीजों को नोट किया। एक चीज मैंने ये देखा कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया ना, तो मैंने देखा कि रब्बे कायनात ने आसमान के तमाम सितारों को मेरे छत पर लाकर जमा कर दिया है। ऐसी रोशनी छाई है कि मैं मक्का की जमीन से बसरा की ऊँटनियों को देख रही थी। फिर हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि दूसरी चीज मैंने ये नोट किया कि रब तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से 3 अलम को भेजा है, 3 झंडों को भेजा है। एक काबा की छत पर लगाया गया, एक मशरिक में लगाया गया, एक मगरिब में लगाया गया। ए मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत का वक्त आया है तो मैंने अपने आप में इस चीज को नोट किया। तीसरी बात ये थी कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते खड़े थे, सब अपनी सब को बांध कर खड़े थे। और जैसे ही मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत हुई तो फरिश्तों ने मेरे बेटे की विलादत पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा था, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अजीबुल बरकत बरेली की मुकद्दस जमीन से करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का काले लाले करामत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जानते हो मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत हुई, मेरा बेटा जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाया, मैंने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद अपने सर को सजदे में रखा हुआ है, अपनी जबान से कुछ कह रहा था। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मैं कान लगाकर सुनी ना तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम
गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनहगारों को याद किए। नबी के बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की तारीख उठा लो, पैगंबर इस्लाम ने जब भी आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगारों को याद करते हुए आज जारी किया है। और ए मुसलमानों, ये तो आने और रहने की बात हुई जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए, जब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में उतारा गया तो सहाबा का बयान है कि हमने जब मज़ार अक़दस को अपने मज़ार अक़दस में नबी आखिरुज़्ज़मा के जिस्म अतहर को उतारा है तो हमने अपनी निगाहों से देखा। हमने सोचा कि क्यों ना नबी का आखिरी दीदार कर लिया जाए, क्यों ना वद्दुहा वाली सूरत एक दफा और देख लिया जाए, हो सकता है दोबारा नबी की सूरत को देखने को ना मिले। तो हजरत तो सहाबा का बयान है कि हमने जब नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर से चादर ततहीर को हटाया तो नबी के लब जुम्बिश कर रहे थे। हमने सोचा हो सकता है नबी सहाबा को याद कर रहे हो, नबी आखिरुज़्ज़मा खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, नबी अज़वाज मुतहहरात को याद कर रहे हो। मगर जब हमने कान को लगाकर सुना ना तो नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी मज़ार अक़दस में अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, हम गुनहगारों को इस कदर नबी याद कर रहे हैं। ये तो आने और जाने की बात हुई। जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल सुनाता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ तो या रसूल अल्लाह आप हमसे कहां पर मिलोगे? अब मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत पर कुर्बान जाओ, अपनी नबी की मोहब्बत देखो कि हम गुनहगारों से किस कदर नबी प्यार करते हैं। नबी इरशाद फरमाते, ए मेरे प्यारे सहाबी, मैं मैदान महशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? अब मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती को खोलो, अपने नबी की मोहब्बत मुलाहिजा करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरे उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर। रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां आप हमसे मुलाकात करेंगे? अब मुसलमानों, अपने मुकद्दर का सितारा देखो कितना बुलंद हम और आपका है। नबी इरशाद फरमाते हैं, दूसरा मकाम वहां पर होगा, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होगा और मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी और मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम हुआ, ये मेरे आका तीसरा मकाम कहां पर होगा? नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत मुलाहिजा करो। मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलिस रात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले कुछ पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। थक गए ना, थक गए हैं, है ना?
नहीं सुनना चाह रहे हैं ना? हाँ? थक गए हैं? हाँ 2-4 मिनट और सुन लो यार, है ना? हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों से किस कदर प्यार किया है। लेकिन ए मुसलमानों, इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी जाहिल लोग हैं, कुछ ऐसे बदबख्त लोग हैं जो ए मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहन्नमी कहते हुए नजर आते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, अगर सैयदा आमिना जहन्नमी हो जाएंगे तो कायनात की कौन सी खातून जन्नत में जाएगी? जिसकी गोद में दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आया हो, वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? और जानते हो नबी उस माहौल में दुनिया में तशरीफ लाए हैं मुसलमानों, जब बेटियों की इस्मत पर हमला किया जा रहा था, बेटियों के वकार को छीना जा रहा था, बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा था। बेटी अगर किसी के घर में पैदा होती थी तो लोग ए मुसलमानों उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, उसकी इज्जतों वकार के साथ खिलवाड़ कर दिया करते थे। हकीकत में मुसलमानों जिस बेटी को मनहूस समझा जाता था, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने इन बेटियों के मकाम को कितना बुलंद किया है, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। नबी आखिरुज़्ज़मा ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिसके घर में बेटी पैदा हुई ना, उसके घर में मनहूसियत नहीं बल्कि गोया उसके घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। ए मुसलमानों, नबी ने इन बेटियों के मकाम को कितना बुलंद किया, इन बेटियों के वकार को कितना ऊंचा किया। हकीकत में इनको सबसे बड़ा ऐब समझा जाता था। अगर ये बेवा होती थी तो इन्हें ए मुसलमानों मनहूस समझा जाता था, मगर इन बेटियों की इज्जत वकार को नबी ने बढ़ाया। मगर आज हमारी कौम की बेटियां नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है, नबी आखिरुज़्ज़मा के वकार को मजरू करने पर आमादा है। जिन बेटियों को पर्दे में रहकर कुरान की तालीम को लेना था, जिन बेटियों को पर्दे में रहकर बाप के वकार को ऊंचा करना था, जिन बेटियों को ए मुसलमानों नमाज की अदायगी करके अपने भाई के वकार को ऊंचा करना था, आज वो बेटियां बाजारों में धड़ल्ले के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है। किसी भी बाजार, किसी भी मेले का जायजा ले लो, हकीकत में नकाब पोश हमारी घर की ख्वातीन ए मुसलमानों घूमती हुई नजर आती है। हकीकत में आज का निकाब भी ए मुसलमानों वो पर्दे वाला निकाब ना है, हकीकत में ये बेपर्दगी वाला निकाब है। हमारी बहनों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, हमारी बेटियों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। हकीकत में मुसलमानों, अगर इसी तरीके से तुम्हारा नजरिया रहा, अगर इसी तरीके से तुम अपनी बेटियों को इसी तरीके से परवरिश करोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि तुम्हारी इज्जतें सरे आम नीलाम होती हुई नजर आएगी। अगर तुम अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत चाहते हो, अपनी बहनों के वकार को बचाना चाहते हो, तो ए मुसलमानों, जिसकी बेटी पर्दे में रहती है वो बाप समाज में सर उठाकर चलता है, जिसकी बेटी बेपर्दा होती है वो समाज में ए मुसलमानों सर झुकाकर चलता है। इसीलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये बेटियां पर्दे में रखने वाली चीज है, हकीकत में इन्हें पर्दे में रखा करो, इनकी इज्जत की हिफाजत किया करो। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, जो बाप अपनी बेटी की परवरिश अच्छी तरीके से कर कर किसी नेक लड़के के साथ रिश्ता किया करता है ना, और उसकी बेटी अगर अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है तो रब तबारक व तआला उसका बाप अगर जहन्नमी ही क्यों ना हो जाए तो उसको जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता करता है। आज माहौल कितना गंदा हो रहा है, आए दिन हमारे घर की बेटियों को देखा जा रहा है, माशरे के अंदर बेटियों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है। ए मुसलमानों, तुम्हें खबर होगी, आए दिन अखबार के जरिए से पता चलता है, आए दिन न्यूज चैनलों के जरिए से पता चलता है कि फला जगह की बेटी धर्म परिवर्तन करके फला के साथ शादी कर रही है। हम अपने हाथ पे हाथ मलते रह जाते हैं। चाय की दुकान पर बैठकर एक चाय पीकर हम समाज के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी जा कहाँ रही है, मेरी बेटी आ कहाँ रही है, इस पर हमारी नजर कभी नहीं होती है। याद रखो मुसलमानों, वो जो वीडियो अभी वायरल हुआ था ना, अमरोहा के करीब का वो वीडियो था, आपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा कि हकीकत में मुसलमानों एक बेटी है जो अपने बाप के जज्बात को किस तरीके से खिलवाड़ बना रही है, अपने बाप के वकार को किस तरीके से मजरू कर रही है, अपनी बाप की इज्जतों को सरेआम किस तरीके से नीलाम कर रही है। एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ
हकीकत में मुसलमानों थाने के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसी के अंदर धर्म परिवर्तन करके हकीकत में वहां पर फेरे ले रही है। बाप बेचारा अटकलें लगाकर, बाप बेचारा उस बेटी के पैर पकड़कर अपने आप में रोता है, गिड़गिड़ाता है। गार्ड की नौकरी करने वाला बाप था, अपनी बेटी से कहता है बेटी अपनी इज्जत को नीलाम ना कर, अपने बाप के वकार को मजरू ना कर। ए बेटी तेरा बाप समाज में रुस्वा हो जाएगा, ए बेटी तेरा बाप के वकार को मजरू कर दिया जाएगा। बेटी अपने बाप के जज्बात को समझ ले, ए बेटी अपने बाप के वकार को समझ ले। लेकिन वो बेटी थी मुसलमानों जिसके ऊपर जुनून सवार था, जिसके ऊपर इश्क सवार था। आप जब सोशल मीडिया पर उस वीडियो को देखेंगे ना तो इस तरीके से अपने बाप को धक्का देती हुई नजर आ रही है। ये कल्चर उस बेटी के अंदर कहां से आया, ये तहजीब उस बेटी के अंदर कहां से आई। हम और आपने अपनी बेटियों की तहजीब को गड़बड़ किया है, हम और आपने अपनी बेटियों के वकार को मजरू किया है। हमारी बेटी रात रात भर फोन से किससे चैटिंग कर रही है हमें कोई खबर नहीं है, किससे गुफ्तगू कर रही है हमें कोई इससे खबर नहीं है, किसके साथ मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, इस पर हम कोई टिप्पणी करने पर आमादा नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हो, जो बाप बचपन से अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाता है, सैयदा ज़ैनब के किरदार को बताता है कि किस तरीके से करबला की तपती हुई जमीन पर नवासे रसूल की शहादत के बाद जब खेमे हुसैन को जला दिया गया था, हजरत सैयदा ज़ैनब के सर से ए मुसलमानों रुपट्टे को छीन लिया गया था, खानदान की तमाम बेटियों से रुपट्टे को छीन लिया गया था। तो सैयदा ज़ैनब ने ललकार कर अपनी खानदान की बेटियों से कहा था, मेरी खानदान की बेटियों, आज नाना की शरीयत को बचाने का वक्त आ गया है, आज तालीमात मुस्तफा के वकार को ऊंचा करने का वक्त आ गया है। ए मेरी खानदान की बेटियों, अपने बालों को आगे कर कर अपने चेहरे की हिफाजत करो। ए मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार करबला के मैदान से दिया था, सैयदा सकीना ने दमिश्क में यजीद के दरबार में जो ए मुसलमानों एक गैर महरम से अपने आप को बचाते हुए जो पैगाम दिया था, अगर दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, तुम अपनी बहन बेटियों को वही किरदार, वही नजरिया दो ना, तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी, मगर किसी गैर महरम के साथ भाग कर शादी कभी नहीं। हजरात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो गया है, फिर कभी मौका मिला तो मैं आपके दरमियान आऊँगा, क्योंकि 1:45 हो गया है। कल मुझे फैज़ाबाद में भी तकरीर करनी है और क्या कहते हैं पढ़ाना भी रहता है ना। हज़रत हमारे मदरसे में गए भी हैं और इन्होंने इतनी दुआएं दिया और इतनी अच्छी तकरीर किए थे कि पूरी आवाम इनसे मुतासिर थी। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, इस परसा गांव पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। हकीकत में इस छोटी सी बस्ती से अगर कोई मुफ्ती निकल जाए ना, है ना, फख्र की बात है कि नहीं। मुबारक खां शहीद जाते होंगे तो दिल गदगद हो जाता होगा, है ना, कि हमारे यहाँ के इमाम है। सही है कि नहीं सही है? हाँ, तो ये रब का बहुत बड़ा फजल है, करम है ना। तो इंशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत, नाशर मसलक आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, माहिर दरसियात हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला मिसबाई दामत बरक़ातुल क़ुदसिया की इज्जत अपने सीने में बसाएं, इसलिए कि उलमा की ताज़ीम करना ये भी